Hello guys, Assalamu alaikum. Hopefully you are all in a good learning position. Today we are going to learn the color purple. Color purple जो है एक novel है. ये लिखा है एलिस वॉकर ने. एलिस वॉकर is an amazing writer. She writes about the female rights basically. She motivates them to stand for their own rights and fight for their rights with the male dominant society. In this story, The Color Purple, the main character is Sally. It's an epic tale spanning 40 years in the life of Sally, an African-American woman living in the South who survives incredible abuse and bigotry from his own father and husband. So this is an amazing story. You're welcome in your beloved channel, Study with Khola. Let's start today's lecture video. First, we learn about the background and history of the novel. One of the most popular of Walker's work. This is The Color Purple is the most popular of Walker's work. The Color Purple by Alice Walker is a 1982 epistolary novel. Approaches the African American life. The main protagonist Sally tells her life story of misery, abuse, and loneliness. Alice Walker received the Pulitzer Prize for Fiction and the National Book Award. Alice Walker uses her writing to give voice to those she felt not to be heard. Her writings focus on African and American women human rights. She stands for the rights of all women. So this novel is very amazing. This is most popular in her writing. और ये जो है इस नॉवल को ये पुलिट्जर प्राइज मिला जो कि बहुत सबसे बड़ा प्राइज है. इसके अलावा जो है इन्होंने एलिस वॉकर ने इस नावल में ट्राई किया कि शी वांट्स टू स्पीक उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ सुनी ही नहीं जाती. शी फेल्ट नॉट बी हर्ड, जिनकी आवाज़ हुक्मरानों तक या मेल डोमिनेंट सोसाइटी तक पहुंच नहीं पाती. ये उन लोगों के लिए लिखती हैं. ठीक है. हर राइटिंग्स उनकी जो राइटिंग्स हैं बेसिकली जो है अफ्रीकन और अमेरिकन वुमेन पे होती है, उनके ह्यूमन राइट्स पे होती हैं और ये उन औरतों के लिए स्टैंड लेती हैं जो अपने लिए खुद ले नहीं पाती. सो दिस इज़ अमेजिंग थिंग. Let's going to introduce the characters of this beautiful novel, The Color Purple. First character is Sally. Sally is the main protagonist of this novel. She is poor and an uneducated woman. Natty, Sally's younger sister. Albert, Sally's husband. The main character's husband. Shug Avery, a singer. Miss Millie, the wife of mayor of the town. Harpo, Sophia's husband and lover. Sophia, wife of Harpo, an independent woman. Squeak, Harpo lover. Alfonso, Sally and Natty's stepfather. Samuel, minister. Corwin, Samuel's wife. Olivia, Sally and Alfonso biological daughter. Adam, Sally and Alfonso biological son. Tashi, wife of Adam. Eleanor, Jane, mayor's daughter. Grady, Shug's husband. Kate, Albert's sister. So these are the characters of this novel. Let's start the novel main story. आइए प्यारे साथियों कलर पर्पल की कहानी को जानते हैं. Let's learn together is our motto. So be active in this story. सैली जो कहानी की मेन प्रोटैगनिस्ट है, इसके इर्द गिर्द जो है ये सारी कलर पर्पल की कहानी जो है घूमती है और इसके अंदर जो है आपको एक मैसेज भी मिलेगा जिसको आपने गौर से सुनना है और कहानी को समझने की कोशिश करनी है. सैली एक पुअर लड़की है और ये अनएजुकेटेड है, पढ़ी लिखी नहीं है. इसकी उम्र जो है आप हैरान होंगे कि ये 14 साल की एक लड़की है जो कि जॉर्जिया में एक रूरल एरिया में ये रहती है. सैली जो है क्या करती है, एक छोटी सी बच्ची है जो खुदा को खत लिखने लग जाती है. यही एक अमेजिंग थिंग है इस नॉवल की, लेटर्स टू गॉड. ये अपने फादर के बारे में लिखती है जो कि जिनका नेम है अल्फेंसो, जो इसको मारते हैं, इसको बहुत ज़्यादा इस पे तशद्दुद करते हैं, इसके अलावा इसका रेप करते हैं. तो जी गाइस आपने सही सुना, इसके फादर जो हैं इसका रेप करते हैं जो ये अपने खुदा को लिखती है.
जिसने इसको बनाया। अल्फांसो जो है एक किस्म के जालिम से इंसान है। इसमें से इनके बच्चे होते हैं। सबसे पहले सैली एक लड़की को पैदा करती है जो इसके फादर जो है इससे चुरा ले जाते हैं और इसको ये बताया जाता है कि इस बच्ची को वुड्स में, लकड़ियों में, जंगल में जाके लेकर मार दिया गया है। सैली अब दूसरे बच्चे को पैदा करती है जो कि एक लड़का है। पहले इसने लड़की को पैदा किया, फिर इसने लड़के को बर्थ दी। इसके फादर ने इसको भी चोरी किया और यही खबर दी कि इसकी डेथ हो चुकी है। सैली की जो मदर हैं बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। अल्फांसो जो है अपनी एक न्यू वाइफ को घर ले आता है, यानी कि सैली की दूसरी मदर को। लेकिन ये ज्यादती खत्म नहीं होती, ये ज्यादती जारी रहती है किसके साथ? सैली के साथ। ही कंटिन्यूज टू अब्यूज सैली। सैली एंड हर ब्राइट प्रीटी यंगर सिस्टर, जो कि इसकी बहुत ही प्यारी बहन है नेटी, ये जानती है कि सैली का रिश्ता उसके बाप जो उसके फादर हैं किसी एक आदमी के साथ करना चाहते हैं जो जिनका नाम है अल्बर्ट। बल अल्बर्ट जो है वो नेटी के साथ शादी करना चाहता है, बट उसके फादर जो है अल्बर्ट के साथ सैली का रिश्ता करना चाहते हैं। तो ये यहाँ पे भी फिर एक अगेन जाती है इसके फादर की तरफ से, जो बंदा उसको पसंद नहीं करता या अट्रैक्टिव नहीं है उससे जो है सैली की शादी करवा दी जाती है। मिस्टर जो अब अल्बर्ट हैं उनका एक लवर है जिनका नाम है शग एवरी। शग एवरी जो बेसिकली एक सिंगर है और एक फैसिनेट किस्म की जो है लड़की है। सैली जब इसकी तस्वीर देखती है तो ये भी इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है। अल्फांसो ने दोबारा से इस बात की जिद की है कि जो सैली है ये हमारी तरफ नहीं, मतलब अब रहेगी, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये तो अल्बर्ट की ही जिम्मेदारी है। और वो उसको एक्सेप्ट करता है और अपने घर ले जाता है, बट उसके साथ वो एक अच्छे हस्बैंड वाला सलूक नहीं करता क्योंकि वो उसके दिल से रिश्ता नहीं जुड़ा होता। उसके लिए ज़िंदगी को डिफ़िकल्ट बना दिया जाता है, जैसे कि उसके फादर के घर में उसकी ज़िंदगी थी, एक जॉयलेस काइंड ऑफ मैरिड लाइफ। शी फोर्सफुली उसको फोर्स किया जाता है कि उसको ज़िंदगी इस तरह की गुजारनी है। नेटी जो है अपने फादर की हरकतों की वजह से, यानी कि अल्फांसो की वजह से भागकर किसके घर जाती है? अपनी बहन के घर, ताकि वो एक किस्म का पनाह हासिल कर सके। बट मिस्टर जो अल्बर्ट हैं उनकी डिज़ायर अभी तक भी नेटी के लिए हैं। उसको जब वो उसको अप्रोच करना चाहते हैं तो वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाती है और दोबारा कभी भी नेटी का पता नहीं चलता। और सैली यही समझती है कि शायद मेरी प्यारी बहन जिससे वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती है अपनी माँ के बाद, उसकी डेथ हो चुकी है। मिस्टर अल्बर्ट की जो सिस्टर है केट बहुत ज़्यादा सॉरी फील करती है, उनको बहुत ज़्यादा सैड फील होता है कि सैली ये डिज़र्व नहीं करती जो सलूक उसके साथ होता है, और उसको ये फोर्स भी करती है कि तुम फाइट करो अगेंस्ट मिस्टर अल्बर्ट और अपनी जो ये अब्यूज है इसको सबमिट करवाओ, यानी कि कोर्ट में सबमिट करवाओ। अब यहाँ पे एक और कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, हार्पो। हार्पो जो है मिस्टर अल्बर्ट के सन हैं जिनको प्यार हो जाता है एक लड़की से जिसका नाम है सोफिया। सोफिया एक मोटी ताजी बल्कि सी औरत है, बट इसमें और सैली में फ़र्क ये है कि शी इज़ इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल लेडी इन स्पीकिंग एंड स्टैंडिंग फॉर हर राइट्स। शग एवरी सुनने में आता है कि टाउन में आई है, जिसकी तस्वीर भी सैली ने देखी और वो भी अट्रैक्ट हुई। ये एक लोकल बार में सिंग करने के लिए आई है। सैली को यहाँ पे अलाउ नहीं है कि जाके देखे। सोफिया यहाँ पे प्रेग्नेंट है और इसकी शादी जो है हरपो से हुई है। सैली इज अमेज्ड, ये बहुत हैरान होती है कि इसके ही घर में सोफिया के साथ एक किस्म का अच्छा रवैया है। सोफिया के साथ हरपो का बहुत ज़्यादा प्यार है और उसको अच्छे से ट्रीट भी किया जाता है, और बट वो इन्फीरियर भी है। हरपो को सैली ही कन्विंस करती है कि ये जो है ना इसको मारना चाहिए, बीट करना चाहिए,
बट सोफिया फिर सैली के पास आती है कि तुम एक औरत हो के मतलब इस तरह कैसे कर सकती हो। बट सैली ने भी हमेशा अपनी जिंदगी में यही देखा होता है, ठीक है, कि इसके साथ जो चीजें होती हैं, और जो हर्पो भी है मजीद मेल डोमिनेंट सोसाइटी का हिस्सा है, वो पहले पहले तो प्यार से रहता है, बट वो भी फिर बीच में बीट करना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि मारना शुरू कर देता है। शग बीमार हो जाती है और मिस्टर अल्बर्ट जो है उसको अपने घर ले आते हैं। शग जो है पहले तो रूड होती है सैली के साथ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों अच्छी फ्रेंड्स बन जाती हैं, और शग का ख्याल रखना जो है वो सैली स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसको एक नर्सिंग का रोल दिया जाता है कि तुमने इसको पैम्पर करना है, इसको नर्स करना है, यानी कि इसका ख्याल रखना है। सैली को थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाती है सेक्चुअली, किसके साथ, शक के साथ। और जो हर्पर जो है इसका अटेम्प्ट जो होता है उसकी तरफ होता है। सोफिया यहाँ से चली जाती है अपने बच्चों को लेके, बहुत महीने गुजर जाते हैं। हर्पो एक फिर दोबारा से इनका जो है मेल मिलाप हो जाता है। शक जो है आदत होती है उसकी रात को गाने बजाने की। सैली यहाँ पे कंफ्यूज हो रही है अपनी फीलिंग्स को लेकर टूवर्ड्स शक। शक डिसाइड ये करती है कि इससे स्टे अवे रहे। जब उसको मिस्टर अल्बर्ट का पता चलता है कि ये इसको सैली को मारते हैं, शक दूर रहना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे जब हकीकत का पता चलता है अल्बर्ट के बारे में, तो सैली के करीब इनका जो रिलेशनशिप है वो इंटीमेट हो जाता है। तो यहाँ पे फीमेल फीमेल का रिलेशन दिखाया गया है, ये भी कहानी का एक इंटरेस्टिंग मोड़ है। शक जो है सैली से क्वेश्चन स्टार्ट कर देती है अबाउट सेक्स के बारे में, कि तुम्हारा जो रिलेशनशिप है अपने हस्बैंड के साथ वो किस तरह है, तुम सेटिस्फाइड फील करती हो, तुम्हें अच्छा महसूस होता है, जिसके जवाब में सैली ना ही बोलती है। बट जब सैली शक से पूछती है कि तुम्हारा उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप है, तो शक उसका हाँ में जवाब देती है। इन दोनों के दरमियान जो है एक अच्छा जो है रिलेशन डेवलप हो जाता है। स्क्वीक जो है एक दिन टाउन में आता है, जो कि स्क्वीक बेसिकली मेयर की वाइफ मिस सैली जो है उससे काम के बारे में एज अ वर्क एज अ मेड उन्हें रखते हैं, ठीक है, सोफिया को। सोफिया आंसर यही होता है कि हेल नो, आई डोंट वांट टू बी योर सर्वेंट। मेयर जो है स्लैप करता है, मारता है सोफिया को इसकी इस हरकत पे। बट सोफिया को बताया गया कि ये किसी की मार बर्दाश्त नहीं करती, ना कि अपने हस्बैंड की और ना ही अपने किसी मेयर की। सोफिया को जेल में भेज दिया जाता है, और स्क्वीक जो है यहाँ पे सोफिया को छुड़ाने की कोशिश करता है। सोफिया को सेंटेंस ये किया जाता है कि उसको 12 साल जो है मेयर के घर पे नौकरानी के तौर पर काम करना पड़ेगा। शक जो है अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे रिटर्न होती है, क्योंकि वो भाग जाती है ना वहां से। और ग्रीडी डिस्पाइट हर मैरिज, शक को एक जो अच्छा सा रिलेशनशिप जो है उनका एक सेम बेड का डेवलप हो चुका है सैली के साथ, एक रात ऐसे होता है कि शक जो है सैली की बहन के बारे में पूछती है सैली से। सैली को तो यही पता होता है कि उसकी डेथ हो चुकी है, और और उसको ये प्रॉमिस भी किया जाता है, मतलब कि वो इसके बारे में कभी भी वो अब नहीं लिखती है। शाक उससे कहती है कि उसने कुछ लेटर्स देखे हैं जो मिस्टर अल्बर्ट जो हैं इनको छुपा के रखते हैं। मिस्टीरियस से लेटर्स थे जो उसे मिले। शाक जो है कोशिश करती है कि उसको जो है लेटर्स दे। जब उसको मिलते हैं तो वो नेटी की तरफ से होते हैं। मिस्टर अल्बर्ट ने उसको ट्रंक में छुपा के रखा होता है। सैली एंड शक जो है बहुत ज्यादा लेटर्स पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, जो बहुत सालों तक सैली की बहन नेटी उसको लिखती रही है, बट इसको छुपा के रखा गया। इस इमोशन को काबू पाकर सैली जो है अपने सारे लेटर्स को पढ़ती है, और उसको ये पता चलता है कि किस तरह से उसके साथ जो है ये छुपा के रखा गया है, और उसके बच्चे भी हैं। लेटर्स ये भी बताते हैं कि उसका एक मिशनरी कपल के साथ वो रहती है, और सैम्यूल और कॉर्नी उनका नेम है, और उनके साथ वो अफ्रीका मूव ऑन हो गई है, जहाँ पे मिनिस्ट्री के वर्क संभालती है। सैम्यूल और कॉरिन के 2 अडॉप्टेड बच्चे हैं, ओलिविया एंड एडम। नेटी एंड कॉरिन बिकम्स बहुत ज्यादा ये जो नेटी और कॉरिन की आपस में फ्रेंडशिप भी हो जाती है। कॉरिन नोटिस करती है कि उसके अडॉप्टेड जो बच्चे हैं वो नेटी के शायद हैं। सैम्यूल का शायद इनके साथ सीक्रेट रिलेशनशिप है, उनकी शक्लें भी उनके साथ मिलती है। कॉरिन तो पहले तो है उनके
उनको उससे जुदा करने की कोशिश करती है, बट वो अपनी गलती पे शर्मिंदा होके इनके साथ पैचअप भी कर लेती है। और उसे ये रियलाइज होता है नेटी को भी कि ये बच्चे जो हैं ये सैली के बायोलॉजिकल चिल्ड्रन हैं। और इन सारी बातों को जानने के बाद वो उनसे लेटर भी लिखती है, और बच्चे जो है अल्फांसो में थे, अल्फांसो में से सैली के हुए जिसको उसने मारने का ड्रामा किया, बट वो रियल में उनका फादर है और ये इनकी मदर है। और यहाँ पे जो अल्फांसो है, सैली को तो इसने यही बताया हुआ है ना कि ये बच्चे नहीं हैं। अब सैली अल्फांसो की भी डेथ हो चुकी है, और इसका जो हाउस है इनकी मदर का वो भी मिल चुका है। किसको मिल गया है? सैली को। कहानी का कुछ आखिर इस तरह से हुआ है कि नेटी जो है वापस आई है 2 बच्चों को लेकर, जो बच्चे हकीकतन सैली के ही थे। और अल्फांसो का क्या बना? उसकी डेथ हो चुकी। और जो अल्बर्ट उसके हस्बैंड हैं उसके खिलाफ शक ने समझाया कि तुम्हारे अपने राइट्स हैं। सैली ने यहाँ पे इंडिपेंडेंटली उससे अलहदा होने का फैसला किया और शक के साथ जाने का फैसला किया, ठीक है। और उसने अपनी नई लाइफ स्टार्ट करने की कोशिश की, और उसने एज अ इंडिपेंडेंट वुमेन अपना कारोबार शुरू किया। और दोनों बहनें जो हैं एंड पे कहानी के नेटी और सैली आपस में उनकी रीयूनियन हुई, और एक अच्छा जो है उनका हैप्पी एंडिंग जो है इस नॉवल की हुई। बट नॉवल के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मिस्ट्रीज से भरा हुआ था, जैसे कि आपने देखा। कहानी के नॉवल के थीम्स हम जान लेते हैं। इसमें गॉड और स्पिरिचुअलिटी का थीम बहुत अहम है। जैसे कि आपने देखा एक 14 साल की बच्ची जो है खुदा को खत लिखती है। आप उसका माइंड लेवल चेक करें कि वो अब्यूज भी हो रही है, उसका रेप भी हो रहा है। रेस और रेसिज्म की बात है, ठीक है। आला तबके के साथ अच्छा सलूक है और औरतों के साथ जो है बुरा सलूक है, जैसे कि सैली ने बर्दाश्त किया, बट सोफिया ने यहाँ पे बर्दाश्त नहीं किया। मैन और वुमेन के जो जेंडर रोल्स हैं वो अलग-अलग हैं, उनके स्पेसिफाई नहीं है। उनके साथ और किस्म का सलूक है, इनके साथ और किस्म का सलूक है। वायलेंस और सफरिंग दिखाई गई है। सेल्फ डिस्कवरी जो है हमने देखा कि सैली के करेक्टर में बहुत ज़्यादा पाई गई है कि उसने अपने आप को किस तरह मूव ऑन किया, अपने आप को जाना कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कुछ राइट्स हैं। Important course of this amazing story. Everything you have done to me already been done to you. This is from Sally. और ये जो है इसने एंड पे कहानी के आखिर में बहुत ही अमेजिंग बोला कि जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है ऑलरेडी तुम्हारे साथ हो चुका है। सो दिस इज अमेजिंग लाइन्स। Sally's color purple other quote, I am poor, I am black, I am even be ugly, but dear Lord, here I am, here I am. So this is also amazing. I am poor, मैं गरीब हूँ, मैं black हूँ, मैं ugly भी हूँ, मैं अच्छी दिखती नहीं हूँ, but dear God, ऐ खुदा, मैं भी हूँ, here I am, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ, मैं भी यहाँ मौजूद हूँ। यानी कि वो खुदा से गिड़गिड़ा के ये बात कर रही है कि मेरी भी सुन लो, मैं भी यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरी तकलीफों का मुदावा कर दो, जिसको वो खत लिखती है। शक लाइक्स हनी एंड नाउ आई एम जस्ट लाइक अ बी। जब सैली और शक की अटैचमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, तो ये सैली के अल्फाज हैं कि शक को तो हनी पसंद है जो कि मीठा होता है, एंड नाउ आई एम जस्ट लाइक अ बी, और मैं तो एक बी हूँ। यानी कि वो अपने आप को अभी भी इंफीरियर समझ रही है, तो इसलिए वो अपने आप को बी यहाँ पे कह रही है। So these are some important and amazing quotes from the Color Purple novel. Hopefully you like today's video and this novel story. If you like it, kindly share with other learners, and like, comment, share and subscribe our channel. Let's meet with another video. Allah Hafiz.